Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। सना कादिर, कौकब फारूकी, नरगिस जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तुर्क सदर को मुकामी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। 2 मई को मुशर्रफ नहीं आए तो दिफा के हक से महरूम हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। इमरान खान की सियासत में नैब का अहम किरदार है, बिलावल भुट्टो जरदारी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने का कोई इरादा नहीं, वजीर इत्तलात। फौजी अदालतों के क़याम में तौसी के मामले को भी पार्लियामेंट में लाया जाए, शाहिद खाकान अब्बासी। फलस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान और यौम अर्ज फलस्तीन की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सिंधी कम्युनिटी का पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों की मुबैना जबरन मजहबी तब्दीली के खिलाफ एहतजाज। रीजना के रज़ाकार मुसलमानों के लिए नया कब्रिस्तान कायम करने के लिए कोशिश। अफगानिस्तान में जंग के कैनेडियन मिशन के इख्तिताम की 5वीं सालगिरह। टोरंटो में सह रोजा योगा कॉन्फ्रेंस। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Moringa has been used as a natural medicine for years. It is known as a miracle tree and provides real benefits for your body, as it contains over 46 types of antioxidants. What I love about Greenwich's certified organic moringa is that it's an upcoming detoxifying superfood. It's the highest quality moringa, and to be honest, I actually can't get enough of it. I'm Nick Jakern of Nick Jakern Financial Solutions, Senior Investment Advisor and Director of Private Client Group. Nick Jakern Financial Solutions is a full-service brokerage firm in Toronto, Ontario, and has been in business for more than 20 years, servicing and building lifelong relationships with his clients. Have peace of mind knowing that you're financially secure and stable. Nick Jakern offers a range of financial services. To learn more, visit us at nickjakernfinancialsolutions.com or contact us today at 416-412-427. Hello neighbors, friends and constituents. My name is Natalia Kusendova and I'm your member of Provincial Parliament for Mississauga Centre. I wanted to let you know that my doors are open. I'm here to listen and help. My staff and I are looking forward to meeting you and hearing from you and assisting with any provincial issues which you may be having. So please give us a call or visit our website, and I look forward to seeing you very, very soon. बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इमरान खान ने तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को मुकामी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि तुर्की के मुकामी इंतखाबात में एक और अहम फतह समेटने पर मैं पाकिस्तान के दोस्त रजब तैयब एर्दोगान को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर को मकामी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इमरान खान ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को मकामी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि तुर्की के मकामी इंतखाबात में
ایک اور اہم فتح سمیٹنے پر میں پاکستان کے دوست رجب طیب اردگان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے لکھا کہ اہل پاکستان دعا گو ہیں کہ اللہ پاک انہیں مزید کامیابیاں عطا فرمائیں۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام ترک صدر رجب طیب اردگان کی مزید کامیابیوں کے لیے دعا گو ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر عمران خان نے ترکی کے صدر طیب اردگان کو مقامی انتخابات میں کامیاب ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ترکی کے مقامی انتخابات میں ایک اور اہم کامیابی سمیٹنے پر پاکستان کے دوست طیب اردگان کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ثنا قادر، ٹیک ٹی وی، پاکستان۔ کچھ بات کریں گے سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کے ٹرائل سے متعلق فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ 2 مئی کو مشرف نہیں آئے تو دفاع کے حق سے محروم ہو جائیں گے، اور حکم دیا ٹرائل کورٹ ان کی غیر موجودگی میں ٹرائل مکمل کر کے حتمی فیصلہ جاری کر دے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کے ٹرائل سے متعلق فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ 2 مئی کو مشرف نہیں آتے تو دفاع کے حق سے محروم ہو جائیں گے، اور حکم دیا ٹرائل کورٹ ان کی غیر موجودگی میں ٹرائل مکمل کر کے حتمی فیصلہ جاری کر دے۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آصف کھوسہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ملزم پرویز مشرف 2 مئی کو عدالت میں پیش ہوں گے، جس پر پرویز مشرف کے وکیل نے کہا میں نے یہی مشورہ دیا ہے کہ پیش ہوں، یقین سے نہیں کہہ سکتا، ان کی صحت کا معاملہ ہے، ہفتے میں 2 مرتبہ ان کی کیموتھراپی ہوتی ہے، کیموتھراپی کا عمل مکمل ہوا تو ضرور حاضر ہوں گے۔ چیف جسٹس نے مزید استفسار کیا سیشن کورٹ ایکٹ کی دفعہ 9 کیا کہتی ہے۔ وکیل استغاثہ نے کہا پرویز مشرف شروع میں عدالت میں پیش ہوئے، پرویز مشرف نے فرد جرم سنی اور انکار کیا، پھر استثناء کی درخواست دی اور وعدہ کیا ضرورت ہوگی تو پیش ہوں گے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ریمارکس میں کہا اب وہ دانستہ طور پر غیر حاضر ہیں۔ غیر حاضری میں ٹرائل اور دانستہ غیر حاضر ہونا 2 مختلف باتیں ہیں۔ غیر حاضری میں ٹرائل ہونا آئینی طور پر درست نہیں، دانستہ طور پر غیر حاضر ہونا مختلف معاملہ ہے۔ دانستہ طور پر غیر حاضری کا فائدہ ملزم کو نہیں دیا جا سکتا۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا اس مرحلے پر ہمیں کوئی فیصلہ نہیں دینا چاہیے، ہو سکتا ہے ہمارے سامنے اپیل میں دوبارہ یہ نقطہ اٹھایا جائے، وقفے کے بعد اس پر مزید غور کریں گے کیا کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کے ٹرائل سے متعلق فیصلہ سنا دیا جس میں کہا گیا کہ اگر 2 مئی کو مشرف نہیں آتے تو دفاع کے حق سے محروم ہو جائیں گے، ایسی صورت میں ٹرائل کورٹ استغاثہ کے دلائل سن کر حتمی حکم جاری کر دے۔ سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کے ٹرائل سے متعلق فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ 2 مئی کو پرویز مشرف نہیں آئے تو دفاع کا حق بھی کھو بیٹھیں گے، اور حکم دیا کہ ٹرائل کورٹ ان کی موجودگی کے بنا ہی ٹرائل مکمل کر کے حتمی فیصلہ سنائے۔ ثنا قادر، ٹیک ٹی وی، پاکستان۔ لاڑکانہ سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ نیب کا کالا قانون جو صرف سیاسی انتقام بنانے کے لیے ہے، عمران خان کی سیاست میں نیب کا اہم کردار ہے، اور ان کی سیاست نیب سے شروع ہو کر نیب پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عمران خان کی سیاست میں نیب کا اہم کردار ہے، ان کی سیاست نیب سے شروع ہو کر نیب پر ختم ہوتی ہے۔ لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ نیب کالا قانون ہے جو صرف سیاسی انتقام بنانے کے لیے ہے۔ عمران خان کی سیاست میں نیب کا اہم کردار ہے، اور ان کی سیاست نیب سے شروع ہو کر نیب پر ہی ختم ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں اپنے تقریروں میں بھی کہا، ہم سب جانتے ہیں کہ نیب ایک کالا قانون ہے، سیاسی انتقام اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا۔ اگر کوئی سیریس ہے کرپشن کا مقابلہ کرنے کے لیے، اگر کوئی سیریس ہے ایسا قانون لے آنے کے لیے جو انصاف کا قانون ہو، جو احتساب کا قانون ہو، جس قانون میں ہر پاکستانی کے لیے، چاہے وہ لاڑکانہ سے تعلق رکھے یا لاہور سے، چاہے وہ سیاستدان ہو یا جنرل ہو یا جج ہو، ان کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اس میں سیریس ہے تو وہ میں ہوں، بلاول بھٹو زرداری ہی یہ آئین لے آنا چاہتا ہے، اور ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ میں لے آؤں گا۔ مگر خان صاحب کو صرف اپنا سیاست چمکانا ہے۔ خان صاحب کی سیاست ہی نیب سے شروع ہوتا ہے اور نیب پہ ختم ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہر سلیکٹڈ حکومت کو بٹھانے میں اور چلانے میں نیب نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے، ویسے ہی خان صاحب کی سلیکٹڈ حکومت کو بٹھانے میں اور چلانے میں نیب کا ایک اہم کردار۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آئین کے مخالف ہیں،
दहशत गर्दों के सहूलतकार वफाकी वजीर बन गए हैं। कलादम तंजीमों के साथ ताल्लुक पर वज़रा को हटाने के बजाय एक और सहूलतकार वजीर बना दिया गया। नए वजीर का नाम बेनज़ीर शहीद के कत्ल में है। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कलादम तंजीमों और दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैंने तो उनका नाम तक नहीं लिया। मैंने नेक ख्वाहिशात के साथ ये इज़हार किया कि आपके यहाँ ये 3 वज़रा हैं जिनके ताल्लुक है, आप खुद देख लें, आप खुद एक्शन ले ताकि आपका इमेज बेहतर हो। आप जो पैगाम भेजना चाहते हो पाकिस्तान में, मुल्क के बाहर भी, कि मैं वाकई दहशत गर्दों कलादम तंजीमों इंतहा पसंदों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहता हूँ, और तो फिर आप इन वज़ीरों को ज़रा देख लें। मगर वज़ीरों को हटाने के बजाय उन्होंने एक और वज़ीर ऐड किया है, शाह साहब, जिसका ऑब्वियसली शहीद बीबी के ने तो जिक्र किया, मगर उसके अलावा भी ताल्लुकात है, उन रिकॉर्ड है मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ। डैनियल पर्ल का इंसिडेंट में बड़ा अहम किरदार रहा। तो ये स्टॉप नोटेड पोजीशंस है। अगर आप एक और वज़ीर को ले आएंगे तो बिल्कुल ले आए, आपका हक है, लेकिन आप क्या पैगाम भेज रहे हो? आप ये पैगाम भेज रहे हो कि दहशत गर्दों के सहूलतकार पाकिस्तान के आज वफाकी वज़ीर है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि अवाम इन लोगों की शक्लें पहचान लें। वसाइल और इदारे अवाम के हैं, हुक्मरान उनसे छीनना चाहते हैं। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध सबको कह रहा हूँ, ये सूबों के वसाइल छीनना चाहते हैं। 18वीं तरमीम के बाद इदारे मिले, लेकिन वसाइल और पैसे नहीं। हमारा मुतालबा है कि हमारा हक हमें दें, आधा खुद खर्च करें, आधा हमें दें। सुर्ख लकीर उबूर ना की जाए, वरना बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी को सिंध के वसाइल छीनने नहीं देंगे। पूरा पाकिस्तान के अवाम को कह रहा हूँ, सिंध के अवाम को कह रहा हूँ, बलूचिस्तान के अवाम को कह रहा हूँ, पंजाब के अवाम को कह रहा हूँ, पख्तूनख्वा के अवाम को कह रहा हूँ कि इन शक्लें के पहचाने। ये आपका आइन में, ये आपको निज़ाम में, ये आपके हकूक़ छीनना चाहते हैं, ये आपके राइट्स छीनना चाहते हैं, आपका वसाइल छीनना चाहते हैं और इस्लामाबाद लेके खर्च करना चाहते हैं। ये आपके वसाइल हैं, ये आपके हकूक़ है, ये किसी का बाप का पैसा नहीं है। ये आपका मेहनत से, आपका पसीना से जो टैक्स कमाया जाता है वो ये पैसा है, जो आपकी रिसोर्सेज से पैसा बनता है वो ये पैसा है। और हम नहीं मुतालबा कर रहे हैं कि हमारा 100% हमें दे दे। हम ये नहीं मुतालबा कर रहे हैं कि हमें 80% दे दे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आधा आप रखें, आधा आप हमें खर्च करने दो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि हमें आवाम की जो मोहब्बत मिली, इससे मुखालफिन बौखला गए हैं। कारवान भुट्टो को ट्रेन मार्च कह रहे हैं। हम तो अपोजिशन कर रहे हैं, लेकिन मुखालफिन हमसे अपोजिशन भी छीन लेना चाहते हैं। आसिफ जरदारी मेरे और मैं आसिफ जरदारी के साथ हूँ। जरदारी बैक फुट पर नहीं, बल्कि हम दोनों फ्रंट फुट पर खेलते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने तो ट्रेन से सफ़र किया, कोई मार्च नहीं किया। और वो सफ़र भी इसलिए कि मैंने गरीब खुदा बख्श पहुँचना था। मैंने लड़काना आना था 4 अप्रैल के लिए, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के लिए। और तो इसलिए मैंने ये सफ़र किया था। और मैं जानता हूँ कि खान साहब अपना कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में नहीं जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में टाइम नहीं देता है। सिलेक्टेड सियासतदान जो होता है अपने वोटर्स को अहमियत नहीं देता है, मगर बाकी जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पे जितने भी बिज़ी होते हैं टाइम बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जाने के लिए। जहाँ तक करप्शन की बात है, खान साहब तो बिल्कुल सीरियस नहीं है करप्शन को ख़त्म करने के लिए या करप्शन का मुकाबला करने के लिए। वो सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनाते हैं। लेकिन जब करप्शन की बात आती है, हुकूमत के उम्मीदवारों के करप्शन की बात आती है, आज भी कभी मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर्स में कि नायब में एक सिटिंग वफाकी वज़ीर और उसका भाई जो सूबाई पंजाब में वज़ीर है, उनके ख़िलाफ़ बहुत से एविडेंस है, मगर ऑब्वियसली उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए ये दोगला निज़ाम है, ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है। और जैसे कि मैं अपने तकरीरों में भी कहा, हम सब जानते हैं। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि नैब काला कानून है जो कि सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता है। इमरान खान की सियासत में नैब का अहम किरदार है। इमरान खान की सियासत नैब से शुरू होकर नैब पर खत्म होती है। सना कादिर, टैग टीवी, पाकिस्तान। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने का कोई इरादा नहीं और एहसास प्रोग्राम के तहत रोजगार और गरीबों को छत देंगे। आसिफ जरदारी का मुस्तकबिल में जेल जाना नजर आ रहा है।
मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने का कोई इरादा नहीं और एहसास प्रोग्राम के तहत रोजगार और गरीबों को छत देंगे। आसिफ जरदारी का मुस्तकबिल में जेल जाना नजर आ रहा है। ये सर्वे हो रहा है, एक मैंडेट है बिस्प के तहत जो है हर 5 साल के बाद एक सर्वे होना होता है जिसमें कि वो गरीबी की शरह, गुर्बत की शरह और उसको जो है वो अपडेट करते हैं। अब ये सर्वे जो है वो ऑलरेडी हो रहा है, सितंबर में इसके नताइज जो हैं वो हमारे सामने। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने का कोई इरादा नहीं। हसास प्रोग्राम के साथ BISP प्रोग्राम भी चलता रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे पर फवाद चौधरी का कहना था नवाज शरीफ के दौर में आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें इंतहाई कम थी, हालिया दिनों में पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ी हैं। पेट्रोल हम कोई पैदा तो नहीं करते हैं, पाकिस्तान में तो नहीं आता है, बाहर की कीमतों से जुड़ा हुआ है। नवाज शरीफ के दौर में तो ये जो तेल था वो $38-40 बैरल पे आ गया था, अब कीमतों में इजाफा हुआ है। वज़ीर इत्तलात ने कहा आसिफ जरदारी के खिलाफ केस नवाज शरीफ के दौर में बने जाली अकाउंट से मुतालिक केस 2015 और 2016 में बनाए गए। मुस्लिम लीग नून ने इन केसेस की बहुत अच्छी तरह से तहकीकात की। आसिफ जरदारी का मुस्तकबिल में जेल जाना नजर आ रहा है। यहाँ हम सख्त फैसले लेंगे और हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान को उसके कदमों के ऊपर खड़ा करने की। सो हम इंशाअल्लाह ताला वो कोशिश कर रहे हैं, उसके मुताबिक। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने का कोई इरादा नहीं है। असास प्रोग्राम के जरिए गरीबों को रोजगार और छत देंगे। सना कादिर, टेक TV, पाकिस्तान। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत बताए फौजी अदालतों में तोसी की क्या जरूरत है। फौजी अदालतों के क़याम में तोसी के मामले को भी पार्लियामेंट में लाया जाए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत बताए फौजी अदालतों में तोसी की क्या जरूरत है। फौजी अदालतों के क़याम में तोसी के मामले को भी पार्लियामेंट में लाया जाए। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि फौजी अदालतों का कानून एक आम कानून नहीं है, उसे मखसूस हालात में बनाया गया है। हुकूमत कौमी असम्बली का इजलास बुलाए, नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक ब्रीफिंग दे। फौजी अदालतों और नैब से मुतालिक हमारा एक मौक़िफ़ है। शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि NRO सिर्फ आमिर देते हैं। मौजूदा हुकूमत NRO देने की पोजीशन में नहीं, उन्हें खुद उसकी जरूरत पड़ जाएगी। मुल्क की मईशत 18वीं तरमीम या NFC अवार्ड की वजह से दिवालिया नहीं हुई। वज़ीर आज़म को 18वीं तरमीम का पता है और न ही NFC अवार्ड्स के बारे में उन्हें कुछ इल्म है। कौमी असम्बली के स्पीकर पर दबाव है वज़ीर आज़म का, हुकूमत का, वो इजलास चला नहीं सकते। आज तक 8 महीने में कोई डिबेट कौमी असम्बली में नहीं हो सकी क्योंकि स्पीकर साहब ये कहते हैं कि मुझ पे बड़ा दबाव है। जो बात उनसे करें उनका जवाब होता है कि मुझ पे बड़ा दबाव है, मुझसे बात मत करें। तो अगर दबाव है, असम्बली का इजलास नहीं चलता, हम प्रोपोजिशन कर लेंगे। शाहिद खकान अब्बासी का कहना था कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर भी ब्रीफिंग दे। नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक अपोजिशन का मुश्तरका मौक़िफ़ है। कौमी सलामती के मामलात पर पार्लियामेंट हुकूमत का साथ देगी। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा मुस्लिम लीग नून और हुकूमत में कोई डील नहीं हुई। इमरान खान NRO देने के अहल नहीं। वज़ीर आज़म को NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम का पता नहीं। तहरीक इंसाफ हुकूमत खुद NRO मांगेगी। देखें, मैं नहीं कह रहा, आप भी यही बात कह रहे हैं। इस मुल्क का बच्चा कह रहा है, मैं नहीं कहता, आप किसी से पूछ लें, ये सारे अफराद खड़े पूछ लें इनसे कि मईशत दिवालिया हो चुकी है। महंगाई का आलम देख लें, कारोबार का आलम देख लें, नौकरियों की हालत देख लें। ये ढकी छुपी बात नहीं है। हम 5 साल देने को तैयार हैं हुकूमत को, लेकिन क्या मुतहम्मल हो सकता है मुल्क 5 सालों का? असल सवाल ये है। बात करेंगे फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीन की आवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए कराची प्रेस क्लब में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीन की आवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए कराची प्रेस क्लब में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। दुनिया भर में मौजूद फ़लस्तीनी आवाम 30 मार्च को फ़लस्तीन का आलमी यौम अर्ज़ मनाते हैं, जबकि गुज़िश्ता बरस इसी दिन फ़लस्तीनियों ने अपने वतन वापसी के हक की तहरीक यानी हक वापसी मार्च के मुजाहिरों का आगाज़ किया था, जो ताहाल जारी हैं। इस सिलसिले में कराची प्रेस क्लब में भी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि फ़लस्तीन न सिर्फ फ़लस्तीनियों का बल्कि पूरे आलम इस्लाम
اور बशरियत की निजात का मसला है। फ़लस्तीन की आज़ादी पूरी इंसानियत की आज़ादी है। आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक के इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि वह फ़लस्तीनी अवाम के बुनियादी हुकूक बिलखुसूस फ़लस्तीनी अवाम के हक़ की वापसी को यकीनी बनाएं ताकि फ़लस्तीन के वासी अपने वतन में जाकर ज़िंदगी गुजार सकें। इस मौके पर मुकर्ररीन की जानिब से गोलान की पहाड़ियों पर अमरीका की जानिब से इसराइली कब्जे को तस्लीम करने की भी मज़म्मत की गई। तक़रीब से खिताब करते हुए मजलिस वहदत मुस्लिमीन के रहनुमा अल्लामा मुबश्शिर हसन का कहना था कि फ़लस्तीन में हालिया इसराइली जारहियत की मज़म्मत करते हैं, जबकि हुकूमत पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से मुतालबा करते हैं कि इस सिलसिले में अपना भरपूर किरदार अदा करें। मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान के रहनुमा अल्लामा मुबश्शिर हसन साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और आज खिताब करें। मुबश्शिर भाई। और आज और गुज़िश्ता 2 दिन पहले भी रात में जिस तरह से गज़ा पर इसराइली हमला किया गया, पाकिस्तान के अवाम यानी उस दिन उस रात में जिस वक्त ये हमला हो रहा था, पाकिस्तान में ट्विटर पर टॉप ट्रेंड गज़ा पर हमला था। यानी पाकिस्तान के अवाम जिस तरह से मज़लूम फ़लस्तीनियों का साथ दे सकते थे, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का ये फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान के अवाम की जज्बात की तर्जुमानी करें और पूरी दुनिया पर UN में OIC में जहां मुमकिन हो सके। MQM पाकिस्तान के रहनुमा महफूज यार खान का कहना था कि दुनिया भर में चाहे वो कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो या रोहिंग्या हो, हमें मजलूम का साथ देना है। तमाम बातें हो चुकी, हमें जुल्म के खिलाफ जिहाद करना है, हमें जालिम का हाथ तोड़ना है और मजलूम के साथ खड़े होना है। और वो मजलूम फ़लस्तीन में हो, कश्मीर में हो, रोहिंग्या में हो या दुनिया के किसी हिस्से में हो, बल्कि हमें बैनुल मज़ाहिब के ज़रिए इस दुनिया में अमन व अमान कायम करना है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कैनेडियन सिंधी कम्युनिटी ने पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों की मुबैना जबरन मजहबी तब्दीली और शादियों के खिलाफ मिसिसोगा में एहतजाज किया, जिसमें मुजाहिरीन ने सूबा सिंध के जिला घोटकी में 2 कम उम्र हिंदू लड़कियों रवीना और रीना के अगवा और मजहब की जबरन तब्दीली के हालिया केस पर रोशनी डाली। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सिंधी कम्युनिटी ने पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों की मुबैना जबरन मजहबी तब्दीली और शादियों के खिलाफ मिसिसोगा में एहतजाज किया। पाकिस्तान से कनाडा मुंतकिल होने वाले मुतादिद सिंधी तारकीन वतन ने एहतजाज के दौरान इस गैर इंसानी हरकत पर खदशात का इजहार किया। उन्होंने सूबे सिंध के जिला घोटकी में 2 कम उम्र हिंदू लड़कियों रवीना और रीना के अगवा और मजहब की जबरन तब्दीली के हालिया केस पर रोशनी डाली। पाकिस्तान भर में तमाम अक़लियती मज़ाहिब को अगवा, मारवाए मजहब की जबरन तब्दीली जैसे मसाइल का सामना है, लेकिन हिंदू और मसीह ख़वातीन बिलखुसूस कम उम्र लड़कियां संगीन मसले से दोचार हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल मजहबी अक़लियतों से सैकड़ों ख़वातीन और लड़कियों को अगवा किया जाता है, उन्हें जबरदस्ती मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया जाता है, उनकी शादियां अगवाकारों से कर दी जाती हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक चेयरपर्सन अमरनाथ ने बताया कि पाकिस्तान में हर माह 20 से ज्यादा हिंदू लड़कियां अगवा की जाती हैं। रज़ाकार ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्वलिटी एंड लिबर्टी के अंदाजे के मुताबिक हर माह 20 से 25 के दरमियान हिंदू लड़कियों का जबरदस्ती मजहब तब्दील किया जाता है। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल सूबा सिंध के जिला घोटकी में हिंदू लड़कियों के मुबैना अगवा का मामला सामने आया था, जिस पर वजीर आज़म इमरान खान ने भी नोटिस लिया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को सरकारी तहवील में देने का फैसला सुनाया था। कबल सिंध पुलिस की जानिब से दोनों लड़कियों का वीडियो पैगाम जारी किया गया था, जिसमें दोनों लड़कियों ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करने का इकरार किया था। रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल इल्लल्लाह असांखे पुलिस सां बचायो, असां पंहिंजे ख़ुशी सां मुसलमान थिया ख़ुशी सां आहियूं। कोर असांखे केर बि असांखे ज़बरदस्ती न रखी, असां पंहिंजी ख़ुशी सां आहियूं। कोर असां पुलिस वारनि खे चयो असां ते ज़बरदस्ती न रखी, असां पंहिंजी ख़ुशी सां आहियूं। इसी के साथ ही टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।